ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.6 centimeter. Small object is placed at a distance of 3.6 centimeter from a magnifier. 3.6 centimeter from a magnifier of focal length 4 centimeter. Of focal length 4 centimeter. Of focal length 4 centimeter. Find the position of the image. Find the position of the image. Find linear magnification and angular magnification. Find linear magnification and angular magnification. एक क्वेश्चन और लिखिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप has a magnifying power 30. Compound microscope has a magnifying power 30. Compound microscope has a magnifying power 30. Fe equal to 5. Fe equal to 5. Assuming the final image to be at least distinct vision. Assuming final image to be at least distinct vision. Calculate the magnification produced by objective. Calculate the magnification produced by objective. बताइए।
कितना 10 आ रहा है मैग्निफिकेशन लीनियर? ठीक है, 6.9 ठीक है, और दूसरा वाले का -5 आ रहा है ये। दूसरा हो गया। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो। हो गई, गलती समझ में आ गई। इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इन कंपाउंड, ठीक है ठीक, इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्ट इज 1 centimeter, the object is 1 centimeter from the objective lens. The object is 1 centimeter from the objective lens. The lenses are 30 centimeter apart. The lenses are 30 centimeter apart, and the intermediate images and the intermediate images 5 centimeter from the eyepiece. Intermediate images 5 centimeter from the eyepiece. What magnification is produced? What magnification is produced? क्या? UO, हाँ। हम्म, कितना आ रहा है? -125 आएगा। -125। आ जाओ आ जाओ। हो गया, सबका आ गया क्या? देखना है कि आगे बढ़े। एल हमें दिया हुआ है 30, यूओ दिया हुआ है 1, यूई दिया है 5। ठीक है, ये वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे।
तो वीओ आ गया आपका 25 यहाँ से मैग्नीफिकेशन। हाँ हाँ। अब एल इज इक्वल्स टू वी ओ प्लस एफ ई होता है फार पॉइंट के लिए, तो एफ ई कितना आ गया 5 आ गया आपका। ठीक है, एफ ई आपका 5 आ गया। और एम कितना है वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी बाई यू ई। हाँ ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते जाइए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन है ये। द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव, द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ 0.5 सेंटीमीटर, focal length 0.5 centimeter and eyepiece, and eyepiece focal length 5 centimeter, focal length 5 centimeter of a compound microscope, of a compound microscope is 7 centimeter, is 7 centimeter. Where should a small object be placed so that, where should a small object be placed so that the eye is least strained, so that the eye is least strained to see the image, so that the eye is least strained to see the image. Also find the angular magnification, also find the angular magnification produced by the microscope, also find the angular magnification produced by the microscope, also find the angular magnification produced by the microscope. ठीक है, आंसर है इसका मैग्निफिकेशन आएगा -15 एंड यू होगा -2/3, यू है -2/3, यू है -2/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, an astronomical telescope has an angular magnification of 5. An astronomical telescope has an angular magnification of 5 for distant objects. For distant objects. Separation between objective and eyepiece is 36. Separation between objective and eyepiece is 36 centimeter. And the final image is formed at infinity. And the final image is formed at infinity. Determine the focal length of objective and eyepiece. Determine the focal length of objective and eyepiece. Determine the focal length of objective and eyepiece. एक और क्वेश्चन लिखिए, diameter of the moon is, diameter of the moon is 3.5 into 10 to the power 3 kilometer, 3.5 into 10 to the power 3 kilometer, and its distance from the earth is, and its distance from the earth is 3.8 into 10 to the power 5 kilometer, 3.8 into 10 to the power 5 kilometer. It is seen through a telescope, it is seen through a telescope having focal length of, having focal length of objective and eyepiece, of objective and eyepiece as 4 meter and 10 centimeter, 4 meter and
10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ क्यों ज़्यादा होती है यहाँ पे टेलीस्कोप में? ज़्यादा लाइट ले सके, ठीक है। ज़्यादा लाइट ले पाएगा तो ज़्यादा ब्राइटनेस होगी, है ना। 4 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट कैलकुलेट ए पार्ट, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। और बी पार्ट, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। सी पार्ट, एंगुलर साइज ऑफ इमेज ऑफ मून, एंगुलर साइज ऑफ इमेज ऑफ मून। बताइए।
ऑब्जेक्टिव का 30 आ रहा है, 30 आ रहा है। नहीं, इससे पहला वाला होमवर्क लिया, दो कहाँ दिया? हाँ तो एक ही तो दिया था। नहीं, एक दिया था होमवर्क। जिसका होमवर्क है तो उसका आंसर बता दिया ना आपको। हम्म। हम्म। इसका तो आंसर नहीं बताया, मतलब निकालना है यहाँ पे आपको। निकाल लिया। हम्म। दूसरे वाले का क्या क्या आ रहा है? दूसरे वाले का एक तो आ रहा है आपका -40, आ गया। ठीक है, दूसरा आपका आ रहा है 4.1 आ रहा है लेंथ, है ना? और आपको क्या निकालना है? एंगुलर, एंगुलर साइज। तो देखिए, एंगुलर साइज निकालने के लिए, है ना, तो मैग्निफिकेशन आपको पता है थीटा डैश बाय थीटा होता है। तो थीटा डैश हो गया थीटा इंटू एम। एम आपने निकाल ही लिया है ना? तो इसकी एंगुलर साइज क्या है ना? इसका थीटा डैश क्या है? थीटा कैसे निकालेंगे? आर्क अपॉन रेडियस। हम कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं? यहाँ से अर्थ से ऑब्जर्व कर रहे हैं किसको? किसको कर रहे हैं? मून। अर्थ से ऑब्जर्व कर रहे हैं मून को। तो ये हमें ऐसा दिखेगा कुछ, है ना? तो ये अगर ऐसा दिखेगा, तो ये अगर इसका डायमीटर हो गया, है ना, तो ये अगर हम ऐसे मानते हैं कि ये बहुत बड़े रेडियस का पार्ट है ना, तो इस लाइन को स्ट्रेट मान सकते हैं। और अगर स्ट्रेट मान सकते हैं तो ये एक तरीके से आर्क हो गई, ये डिस्टेंस डी, है ना? तो हमारे पास क्या होता है? एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। तो थीटा कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे? एल कितना है? 2r अपॉन में 2 इंटू रेडियस, ये इसका मून का, अपॉन में इसकी जगह ये आ जाएगा डिस्टेंस कितनी है इसकी, है ना? इसको एक्स बोल देता हूँ, 2r/x। ठीक हो जाएगा ना? ये तो लेंथ ऑफ द आर्क ठीक हो जाएगा, डायमीटर 2r/x। तो ये आ गया आपका। डायमीटर कितना दिया है? 3.5 × 10⁻³ और ये कितना दिया है हमारे पास? डिस्टेंस कितनी दी है? 3.8 × 10⁻⁵। इससे क्या आ गया? थीटा आ गया। सही है। थीटा आ गया तो थीटा डैश भी आ जाएगा आपका। थीटा डैश 21 डिग्री आ रहा है वैसे आंसर में।
हो गया इतना? इस वाला करोगे, ट्राई तो कर लो पहले। पीछे वाला हो गया? ये वाला आंसर 630। आ रहा है? हो गया इतना? आगे बढ़े? नेक्स्ट आपका वेव ऑप्टिक्स है ना, नेक्स्ट चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स। अब देखिए, लाइट को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं रे की तरह, वेव की तरह और पार्टिकल की तरह, है ना। तो वेव की तरह जब हम ट्रीट करेंगे इसे, ठीक है, तो क्या होता है कि ये हमें जो सोर्स है, कि शायद हमने बात पहले करी है कि नहीं करी है, कि जब हम इसको यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, सिर्फ दो डॉट मिलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मिलने चाहिए थे, जैसे रे होती है। लेकिन जब हम इसे ऑब्जर्व नहीं करते हैं, तो क्या होता है, हमें यहाँ भी ब्राइट मिलता है, ब्राइट 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 ब्राइट, ऐसे पैटर्न मिल जाता है जब हम इसे ऑब्जर्व नहीं करते हैं। बताइए मैंने ये बात नहीं बताई? तो जैसे सपोज करो मैं अभी इसको देख रहा हूँ, तो सिर्फ इतने ये दो पॉइंट्स मिलेंगे मुझे। लेकिन जब नहीं देख रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ, तो क्या होगा, मुझे सारे पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पे। इसको बोलते हैं फ्रिंजेस। यहाँ पे मिलेगा ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ऐसे करके मिलेगा। तो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसे पता कैसे चला कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है ना। उसने दूसरी फिल्म लगाई, कोई फिल्म मतलब कोई स्क्रीन लगाई यहाँ पे, जो कैसी है, फ्लोरोसेंट है। तो क्या होगा, जैसे ही पार्टिकल पड़ेगा ग्लो करेगा कुछ देर के लिए। तो वो देखता था, तो ये वाले पार्टिकल ग्लो कर रहे थे, ये वाली जो पॉइंट्स हैं वो ग्लो कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मुंडी मोड़ता था, तो ये पैटर्न मिल जाता था, तो ग्लो तो सारे करेंगे अब तुम चाहे ऐसे करके देखोगे, वो पैटर्न तो नहीं मिलेगा, लेकिन ग्लो तो मिलेगा। तो उसने देखा ये ऐसा हमें ये पैटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें मानना पड़ा कि भाई ऐसा कौन सा लाइट को असम्पशन किया जाए ताकि ऐसा हमें पैटर्न ऑब्जर्व करके हम प्रूव कर सकें। तो हमें लाइट को क्या मानना पड़ा, वेव मानना पड़ा। लाइट को बोलते हैं वेव नेचर है, ठीक है। अब थोड़ा सा हमारे पास हाइजीन्स प्रिंसिपल है। तो पहला टॉपिक डालिए, वेव फ्रंट एंड हाइजीन्स प्रिंसिपल। वेव फ्रंट एंड हाइजीन्स प्रिंसिपल डालिए। कुछ पॉइंट्स इसमें थ्योरी है, आप देख लीजिए आपको लिखना है कि नहीं लिखना। बोलूँ मैं? अब वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज surface of constant wave, constant phase. A wavefront is defined as surface of constant phase. A wavefront is defined as surface of constant phase. Next point. Speed with which wavefront moves. Speed with which wavefront moves outwards from the source is called speed of wave. Speed with which wavefront moves outward from the source is called speed of wave. Next point. Energy of the wave travels in a direction. Energy of the wave travels in a direction perpendicular to the wavefront.
Energy of the wave travels in a direction perpendicular to the wave front. Next point. Wave front of a wave originating from a point source are spherical. पॉइंट सोर्स होगा तो वेव फ्रंट इसका स्फेरिकल होगा. फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स आर स्फेरिकल एंड फॉर अ लाइन सोर्स आर सिलेंड्रिकल. Wave front of a wave originating from a point source are spherical and for a line source are cylindrical. नेक्स्ट देखो हाइजीन्स प्रिंसिपल. ये क्या कहता है? इफ वी नो द शेप ऑफ वेव फ्रंट, if we know the shape of wavefront at t equal to 0, if we know the shape of wavefront at t equal to 0, then by Hygiene's principle, then by Hygiene's principle, we can determine we can determine the shape of wavefront, then we can determine the shape of wavefront at later time t, at later time t. Next point. Each point of the wavefront, each point of the wavefront is the source of secondary disturbance. Each point of the wavefront is the source of secondary disturbance, and the wavelets emanating from these points and the wavelets emanating from these points and the wavelets emanating from these points spread out in all directions, spread out in all directions with the speed of wave, with the speed of wave. With the speed of wave. Next, these wavelets emanating from the wavefront, these wavelets emanating from the wavefront are called secondary wavelets. These wavelets emanating from the wavefront are called secondary wavelets. And if we draw tangent to all these spheres, and if we draw tangent to all these spheres, and if we draw tangent to all these spheres, we obtain new position of the wavefront. We obtain new position of the wavefront at a later time. We obtain new position of the wavefront at a later time. We obtain new position of the wavefront at a later time. अब इसमें क्या कह रहा है थोड़ा समझ लेते हैं ना. हमसे क्या कह रहा है, ये हाइजीन्स प्रिंसिपल के कुछ पॉइंट्स तो आपको समझ में आ गए होंगे जो हमने वेव फ्रंट ऑफ अ वेव ये लिखा है ना. हमने लिखा है एक पॉइंट सिलेंड्रिकल तक. पॉइंट सोर्स का कैसा होता है? स्पेरिकल. और लाइन सोर्स का होता है सिलेंड्रिकल, है ना.
अब ये कह रहा है कि अगर सपोज करो पॉइंट सोर्स है, ये सोर्स है, कह रहा है कि ये क्या भेजता है, वेव्स भेजता है, और इसका वेव फ्रंट कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। और जो एनर्जी जा रही होती है, एनर्जी जा रही होगी कैसे, यूं, परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। एक पॉइंट लिखा है, एनर्जी इज ट्रेवलिंग परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट विद द स्पीड ऑफ लाइट, और मीडियम में होगी दूसरी हो जाएगी, है ना। अब कह रहा है कि ये जो भी हमारे पास t इक्वल टू 0 पे अगर मुझे पता है कि इसका शेप कैसा है, तो कह रहा है कि मैं लेटर टाइम t पे पता लगा सकता हूँ शेप कैसा होगा। उसके लिए क्या करना है, कह रहा है कि जितने भी पॉइंट्स हैं, कहाँ पे, ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस। कह रहा है जितने भी पॉइंट है वेव फ्रंट पे, ये वाला पॉइंट हो चाहे ये वाला पॉइंट हो, ये क्या है भाई, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस, मतलब ये भी एक वेव बना रहे होंगे, ये भी एक वेव फ्रंट बना रहे होंगे। मैंने क्या लिया, कंपास लिया, और इस रेडियस का क्या बनाया, कितनी रेडियस है भाई, टी टाइम बाद सी स्पीड से जा रहा हूँ, कितनी हो जाएगी, सी टी डिस्टेंस हो जाएगी, ये भी डिस्टेंस हो जाएगी सी टी। ऐसे करके एक आर्क लगा दूंगा, और जितने भी कॉमन पॉइंट है आर्क का, सबको अगर जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक वेव फ्रंट मिल जाएगी, जो मैं पता लगा सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ हाइजीन्स प्रिंसिपल। ये बोला था किसने, हाइजीन ने, है ना। कह रहा है कि ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, ये पॉइंट क्लियर है ना। कह रहा है कि एंड द वेवलेट्स एमिनेटिंग फ्रॉम दीज पॉइंट्स स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शंस। कह रहा है कि जो भी वेवलेट्स आ रही हैं यहाँ पे, इसको क्या बोल रहे हैं, वेवलेट, है ना। यहाँ भी वेवलेट आ रही होगी, एक ऐसी आ रही होगी, ये क्या क्या हो रहा है भाई, हर डायरेक्शन में स्प्रेड हो रही है, कह रहा है हर डायरेक्शन में स्प्रेड हो रही है, कितनी स्पीड से, स्पीड ऑफ वेव से, है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दीज वेवलेट्स एमिनेटिंग फ्रॉम वेव फ्रंट आर कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। जो भी वेवलेट बन रही हैं, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, सेकेंडरी वेवलेट बोल रहा हूँ। और जब टेंजेंट बनाते हैं तो हमें फिर से एक वेव फ्रंट मिल जाती है लेटर टाइम पे। ये बोलता है क्या, हाइजीन्स प्रिंसिपल। ठीक है, ये बनाना है कि आगे बढ़े। हो गया इतना। नेक्स्ट लिखिए इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस लिखिए इसमें, when two or more wave trains, when two or more wave trains of light, when two or more wave trains of light of same frequency, of same frequency traveling in almost same direction, same frequency traveling in almost same direction, traveling in almost same direction are superimposed, comma, resultant intensity in the region of superposition, resultant intensity in the region of superposition, comma, in general different from the sum of intensities, different from the sum of intensities, different from the sum of intensities due to individual waves, due to individual waves। ठीक है। नेक्स्ट है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब आपने ये वेव्स में पढ़ा होगा, इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, आई से, है ना। ए क्या है, इसका एम्पलीट्यूड, है ना। और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, ए स्क्वायर। और अगर मैं नेट इंटेंसिटी लिखना चाहूँ, कितना होगा, I1 + I2 + 2 √I1 I2 cos फाई। और अगर मैं ए नेट लिखना चाहूँ, तो ए नेट कितना होगा हमारे पास, A1 स्क्वायर + A2 स्क्वायर + 2 A1 A2 cos फाई का
अंडर रूट, सही है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या कहता है भाई कि अगर सोर्स होगा तो हमें यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। ये वाइट वाला क्या है, ब्राइट फ्रिंज, और ये येलो वाला क्या मिल रहा है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं डार्क फ्रिंज मिल रहा है। डार्क फ्रिंज मतलब ये नहीं कि लाइट है ही नहीं, वहाँ लाइट हो सकती है लेकिन मिनिमम इंटेंसिटी की लाइट होगी, और ब्राइट फ्रिंज में मैक्सिमम इंटेंसिटी की लाइट होगी, है ना। अब सपोज करो ये सोर्स रखा है, यहाँ से लाइट वेव आई हमारे पास, और हमें यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न देखना है। तो यहाँ पे हमने दोनों रेस को मीट करा दिया। कौन सी रे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, नीचे वाली या ऊपर वाली? नीचे वाली ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करी, कितनी कर रही है ज़्यादा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो डेल्टा एक्स डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर रही है। इसको बोलते हैं क्या, पाथ डिफरेंस बिटवीन दी टू वेव्स। एक वेव यहाँ से गई, एक वेव यहाँ से गई, तो इंटरफेरेंस हो रहा है तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, नहीं तो इंटरफेरेंस पैटर्न हम लोग पता नहीं लगा पाएंगे, होएगा तो, लेकिन फिर हमें पता लगाने में दिक्कत होगी। हाँ सही, ठीक से मैक्सिमा नहीं बनेगा, पैटर्न नहीं बनेगा एक, है ना। तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करी, ये डेल्टा एक्स हो गया। अब ये थीटा है, अगर अप्रोक्सीमेशन से ये भी थीटा ही आएगा, है ना। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये परपेंडिकुलर है तो ये थीटा हो गया। अब मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे डी को बोल रहा हूँ डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, और कैपिटल डी को बोल रहा हूँ डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड दी स्लिट, है ना। तो टैन थीटा कितना होगा इस ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस वाई बाई कैपिटल डी, और साइन थीटा कितना होगा इस ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, है ना। तो ये हो गया हमारे पास कितना, डेल्टा एक्स बाई स्मॉल डी। अगर थीटा छोटा है तो साइन थीटा थीटा हो जाएगा, ठीक है, और अगर थीटा छोटा है तो टैन थीटा भी हमारे पास थीटा हो जाएगा, तो थीटा हो गया वाई बाई डी, यहाँ भी थीटा हो गया डेल्टा एक्स बाई डी, ठीक है। तो इसके बाद जब हम वैल्यूज देखेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, तो वाई कितना हो गया, डेल्टा एक्स कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। इतना लिखना है कि आगे बढ़े? बॉटनी का कितना सिलेबस बचा है आपका, कितने लेक्चर? 4 लेक्चर। मतलब पहले बॉटनी हो जाएगा, फिर फिजिक्स होएगा, फिर केमिस्ट्री होएगा आपका, ना। देख लिया। हो गया, ठीक है। इक्वेट भी कर देना एक बार, भाई आगे डेल्टा एक्स कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। आगे बढ़े। अब देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, एम्पलीट्यूड आपका मैक्सिमम होता है, और आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने के लिए भाई हमारे पास यहाँ पे कॉस फाई कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। कॉस फाई 1 कब होगा, जब फाई आपका 0 डिग्री हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, ठीक है। तो हमारा फाई कितना होना चाहिए, 2 n पाई।
एन की वैल्यू 0 1 2 3 और प्लस और माइनस दोनों में होंगी, है ना। और फाइव कितना होता है मेरे पास, रिलेशन अगर देखें हम लोग कितना होता है, के डेल्टा एक्स। पाई होता है के डेल्टा एक्स, याद है। तो के है 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो 2 n पाई रख दिया, 2 पाई बाई लेमडा डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स कितना आ गया, एन लैमडा। तो 0 +−1 +−2 +−3 एंड सो ऑन। तो डेल्टा एक्स कितना होगा, 0 +−λ +−2λ +−3λ। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितनी आएगी यहाँ पे, A1 + A2। और अगर A1 A2 दोनों बराबर हैं तो कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा। मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आएगी, √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। ये सब याद है, वेव्स में ही पढ़ा था हमने एक बार, है ना। और I1 I2 दोनों बराबर हो जाएंगी तो कितना आएगी मैक्सिमम इंटेंसिटी, 4I। सिंपली अगर ऐड कर देते, नॉर्मली ऐड कर देते तो I1 + I2 हो जाती, लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगता हमारे पास, है ना। अब पाई कितना है, डेल्टा एक्स कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करेंगे एन लैम्डा, पाई हो गया एन लैम्डा डी बाई डी। ठीक है। अब यहाँ पे n = 0 रखूंगा, चलो पहले इतना लिखो फिर आगे बताता हूँ। हो गया, बताओ। बताए। अब देखिए, n = 0 पुट करिए तो y कितना आएगा आपका, 0 आएगा। इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज और प्रिंसिपल मैक्सिमा। एक और नाम है इसका, प्रिंसिपल मैक्सिमा। ये प्रिंसिपल मैक्सिमा कब मिलता है, जब आपका डेल्टा एक्स 0, डेल्टा एक्स आपका क्या हो, 0। मतलब सेंट्रल मैक्सिमा हम उसको बोलते हैं जब आपका, जब पाथ डिफरेंस 0 आएगा। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है भाई, आगे आएगा ये क्वेश्चन, है ना। अभी प्रिंसिपल मैक्सिमा कब मिलेगा, जब आपका पार्ट डिफरेंस क्या हो, 0। n = +−1 रखूंगा तो +−λ/d आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा, ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे तो उतना नीचे भी आएंगे। +−2λ/d क्या मिले, क्या होगा, ये सेकंड मैक्सिमा। तो n की वैल्यू जो होगी वही पुट कर देंगे तो वही मैक्सिमा हो जाएगा। n = 2 to 2λ/d और ये क्या हो जाएगा, सेकंड मैक्सिमा। अगर मैं पूछूंगा सेवेंथ मैक्सिमा, 7 रख देंगे प्लस माइनस, है ना। ये हो जाएगा आपका +−7λ/d। अगर मैं पूछूंगा डिफरेंस बिटवीन नाइन्थ एंड थर्ड मैक्सिमा, तो 9λ/d -3λ/d कितना हो जाएगा, 6λ/d। ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, एम्पलीट्यूड मिनिमम चाहिए, और मिनिमम एम्पलीट्यूड कब होगा, जब कॉस पाई मिनिमम होगा। तो कॉस पाई की वैल्यू मिनिमम कब होती है, -1। तो पाई कितना होना चाहिए आपका, पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। कॉस पाई इज -1। तो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा 2n + 1 पाई।
ये हो गया फाइव, एन की वैल्यू 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। और फाइव इक्वल टू होता है के डेल्टा एक्स। के डेल्टा एक्स तो के हमने पुट कर दिया, डेल्टा एक्स रख दिया, डेल्टा एक्स कितना आ गया मेरे पास, n+½ लैम्डा। कितना इतना कि आगे बढ़े। हो गया। हो गया। ठीक है। अब हमारे पास डेल्टा एक्स आ गया, तो एन की वैल्यू पुट करते जाएंगे, है ना, और ये वैल्यू वाई वाई में पुट कर देंगे। हटाओ। ठीक है। तो एन इक्वल टू 0 +-1 +-2 है, तो हमारे पास डेल्टा एक्स +-λ/2 +-3λ/2 +-5λ/2 हो जाएगा इस तरीके से। और मिनिमम मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, A1 - A2, और दोनों बराबर हो जाएंगे तो जीरो हो जाएगा। और मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। और दोनों बराबर हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगी, है ना। तो वाई हो गया डेल्टा एक्स कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अब डेल्टा एक्स हम रखेंगे n+½ लैम्डा। तो n इक्वल टू जीरो पे क्या मिल रहा है, λ/2d। इसको बोलेंगे फर्स्ट मिनिमा, क्योंकि मैक्सिमा कहाँ मिल रहा था, λ/d/d पे, है ना। और ये λ/d/2d पे मिल रहा है, आधे पे मिल रहा है, तो पहले क्या मिलेगा आपको, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बाद क्या मिलेगा, पहला मिनिमा मिलेगा आपको। कब मिल रहा है, n इक्वल टू जीरो के लिए याद रखना पहला, n इक्वल टू 1 के लिए दूसरा। तो 1 पुट करेंगे कितना हो जाएगा, c/2 λ/d/d, है ना, 1 + 1/2। तो कितना हो जाएगा, सेकेंड मिनिमा हो जाएगा। n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तीसरा मिनिमा हो जाएगा। तो जो n होगा उससे एक बड़ा मिनिमा होगा, बात सही है। और n इक्वल टू -1 रखूंगा, कितना आएगा, -λ/d/2d। सही है। तो कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट मिनिमा हो जाएगा। फर्स्ट मिनिमा कैसे हो जाएगा भाई, ऊपर गया तो फर्स्ट, नीचे गया तो फर्स्ट, है ना। अगर ये हमारे पास जीरो है सेंट्रल ब्राइट, तो ऊपर गया तो फर्स्ट मिनिमा, और नीचे भी गया तो कितना, फर्स्ट मिनिमा। लेकिन -1 पे ही मिल रहा है फर्स्ट मिनिमा, और -2 पे मिल रहा है सेकंड मिनिमा। तो ये सिर्फ ऊपर वाले के लिए है, 1 पे मिनिमा के लिए, 1 पे सेकंड मिनिमा, सेकंड पे n इक्वल टू 2 पे थर्ड मिनिमा, यहाँ पे n इक्वल टू 2 पे सेकंड मिनिमा, -2 पे सेकंड मिनिमा। ये याद रखना, बात क्लियर है। फिर से बताना है कुछ, नीचे जाने पे तो ये सेम मिलेगा, यहाँ -2 है तो यहाँ पे सेकंड मिनिमा, लेकिन ऊपर जाएंगे तो 2 पे थर्ड मिलेगा, एक ज़्यादा। कहाँ पे, यहाँ पे जीरो रखेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा ना, ये तो ऊपर चला गया बाई एक्सिस में। नीचे आने के लिए क्या रखना पड़ेगा, -1, है ना, हमारे पास दोनों वैल्यू है, +-1। हाँ, हाँ, जीरो वाला पॉजिटिव की साइड रहेगा, माइनस वाला नेगेटिव की साइड रहेगा। और माइनस वाले पे सेम रहेगा, -1 तो फर्स्ट, -2 तो सेकंड, लेकिन यहाँ 2 रखेंगे तो थर्ड, है ना। और अगर मैं पूछूंगा सेवेंथ मिनिमा, n इक्वल टू 6 होगा, है ना, 6 पे सेवेंथ मिलेगा ना आपको,
सेकंड पे थर्ड मिल रहा है, थर्ड पे फोर्थ मिल रहा है, तो सिक्स पे सेवेंथ मिलेगा, है ना। और सिक्स और माइनस वाले के लिए माइनस सेम रहता है, -7। वैल्यूज पुट करेंगे कितना आएगा, है ना। वन प्लस कितना था, वन प्लस हाफ, तो वन एन प्लस हाफ था ना हमारे पास, तो कितना हो जाएगा, एन हमारे पास कितना था, 6 + 1/2, 13/2 आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन नाइन्थ एंड थर्ड मिनिमा, नाइन्थ मिनिमा की वैल्यू क्या होगी, नाइन्थ मिनिमा की वैल्यू 8 + 1/2, 8 + 1/2 इज 17 λ/2, है ना। और थर्ड की कितनी होगी, एन की वैल्यू 2 रखेंगे, तो हो जाएगी 2 + 1/2 इज 5/2, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 6 λ/d। क्लियर, लिखना है इतना। हो गया, हो गया ये? नहीं, अभी संडे टेस्ट है, संडे नहीं है, 16। नेक्स्ट वीक हम लोग का सिलेबस खत्म हो जाएगा ना। हाँ, अभी क्या है, 9 तक है ना, हाँ टेस्ट से पहले। हाँ, ये इस हफ्ते हो जाएगा आपका, 2 बचे ना। और आपका फोटो इलेक्ट्रिक भी स्टार्ट हो जाएगा इसी हफ्ते। और फिर आपका नेक्स्ट वीक एटम होगा, एक लेक्चर, न्यूक्लियाई, जल्दी हो जाएंगे। हाँ, क्या एटम न्यूक्लियाई, मॉडर्न, हाँ 3-4 में हो जाएगी। हाँ, वेटेज केमिस्ट्री में भी है ना, इसलिए केमिस्ट्री में भी वो आता है। क्या, पैटर्न चेंज होने से, हाँ बहुत ही कम हो गए। तुम लोग के कितने आ रहे हैं, अच्छा 6 बस। कौन कौन है, हाँ। हम्म, कौन लड़की आई थी, डाउट पूछने हमारे बैच की है।
क्या नाम है? जैनब, अच्छा। वो कभी कभी आती है, यहाँ बैठती है आगे। पीछे बैठती है? हाँ, वो उसकी जगह ऐसी रहती है शायद, कभी आगे कभी पीछे। आगे नहीं बैठी आज तक क्या? जैनब, लेकिन समझ गया मैं। और आप लोग कितने आ रहे हैं? 690? 30? आपके ज़्यादा कम हो गए, 597। हाँ, 610 कम हो गए सबके। नहीं नहीं, फ़र्क तो पड़ता है भाई। ऑप्शनल क्वेश्चन में तो फ़र्क पड़ता है आपके। एक वो भी रहता है ना, कॉन्फिडेंस, कि ये नहीं आया तो ये कर दूंगा, वो नहीं आया तो ये कर दूंगा। मैंने अभी टेस्ट देखने गया था मैं, अभी एक ड्यूटी लगी थी कहीं मेरी। पालिका, कौन सा मंदिर है वो, कस्तूरबा। हाँ। तो उसमें कुछ बच्चे तो सो रहे थे, मतलब उनका 1 घंटे में ही खत्म हो गया था पेपर। उसका 2 घंटे में हो गया था, ड्राइंग बना रहे थे बैठ के। मतलब इतनी जल्दी भी हो जाता है क्या? हाँ। आधे बच्चे तो मतलब 5 बजे नहीं निकल गए। कौन है इसमें? हम्म। अगर सही से पढ़ाओ। मतलब 4:40 तक ये समझो कि आधे से ज़्यादा क्राउड खाली हो गया था। 4:40 तक 90%। हाँ। अरे ड्रॉपर के। हाँ। हाँ, इतना आता होगा। 4:40 तक मतलब 90% क्राउड खाली, मतलब आप सब लोग देखेंगे रोड पे 4:40 तक। 10% में ही रहता है जो पढ़ के आते हैं, नहीं। कुछ बहुत सारे लोग तो इधर उधर चले जाते हैं। इससे क्या हुआ? हम्म। 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 हाँ। क्वेश्चन तो आएगा ही, करने सारी है। इस बार 700 लाना थोड़ा टफ पड़ेगा। हम्म। पेपर तो देखो, लास्ट ईयर का भी मॉडरेट ही था, ना इजी था इतना, ना टफ था। नॉर्मल ही था पेपर। बस एक एज रहता है, 20 क्वेश्चन का जो एज मिल जाता है। कॉन्फिडेंस मिल जाता है ना, ये नहीं आ रहा है तो 100% इसके चांसेस सही होने के। आज तो नहीं, पहले नहीं आते थे। हाँ। बस 705 715 ऐसे आते थे। हाँ। हाँ, तो आप लोग ये माइंडसेट मत कर लो कि 700 ये आएंगे। ऐसे तो बहुत सारे बच्चे। नहीं, लेकिन आप टारगेट अच्छा लेके चलो, आप सोचो कि सारा पढ़ के जाना है भाई। तो गलती देखो ना कहाँ पे हो रही है आपकी। क्योंकि अभी तक तो आप जितने टेस्ट दे रहे हो उस हिसाब से नंबर आने चाहिए। तो मतलब सब पूरे बैच का आ गया रिजल्ट, पूरे ऑल ओवर? तो हाईएस्ट मार्क्स कितने गए हैं ऑल ओवर इंडिया, है ना? हाईएस्ट भी उतने हैं? मतलब अपने सेंटर से या फिर? सेंटर से कितनी रैंक है अपने? कितने? अच्छा, उसकी रैंक क्या है? 6th है। उसके नंबर क्या है? पेपर तो यार फिजिक्स का तो मुझे इजी लग रहा था। केमिस्ट्री टफ थी। रैंक 1 आई है? अरे वाह, कॉन्ग्रेट्स। 175? सही है। फिजिक्स तो इजी आई थी इस बार, मैंने देखा था। फॉर्मूला फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए थे। कॉपी में भी कुछ क्वेश्चन थे, मैंने देखा था। एक पता नहीं क्या था ये, इस टाइप के जो क्वेश्चन कराए थे ना। मैग्नेटिज्म। हम्म। वो आते ही आते हैं हर साल, कोई ना कोई इतना करा दिया है, वो तो फंसता ही है कोई ना कोई।
हाँ 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 हाँ। ये लिख लिया, ये वाला हो गया। अब देखिए फ्रिंज अगर हम देखें ना, तो y इक्वल टू जीरो पे हमें क्या मिल रही है भाई, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिल रही CBF। पहली ब्राइट फ्रिंज मिल रही है लैम्डा डी बाई डी, दूसरी मिल रही है 2 लैम्डा डी बाई डी, तीसरी मिल रही है 3 लैम्डा डी बाई डी, है ना। और नीचे जाएंगे -λ/d/d, -2 λ/d/d, -3 λ/d/d, ब्राइट 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 ऐसे मिल रही है। और यहाँ पे क्या है भाई, डार्क, है ना। तो सेंट्रल के बाद क्या मिलेगा, पहली डार्क λ/d/2t, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर ऐसे ही नीचे जाएंगे तो होगा, है ना। बनाना है कुछ, आगे बढ़े, आगे बढ़े। फिर एक टर्म आता है फ्रिंज विड्थ। व्हाट इज फ्रिंज विड्थ? हाँ, जो थिकनेस आ रही है इतनी, है ना, फ्रिंज विड्थ, है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू मैक्सिमा, कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा और कॉन्जिक्यूटिव मिनिमा। तो y2 - y1 2 λ/d/d -λ/d/d, λ/d/d यहाँ से भी आएगी। और अगर मिनिमा वाला लोगे 3/2 और 1/2, कितना आ जाएगा, ये भी λ/d/d आएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, λ/d/d। फिर होती है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या है भाई, β/d, है ना। तो कितना जाती है, λ/d। दिस इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ। और जो बीटा है लैम्डा पे डिपेंड कर रही है, कैपिटल डी पे कर रही है, और इन्वर्सली है स्मॉल डी पे। ठीक है, कितना लिखना है कुछ, ये आगे बढ़े। हो गया। हो गया। इफ वी यूज टू लाइट्स, वन इज रेड एंड अदर इज वॉयलेट, किसकी फ्रिंज ज़्यादा होगी, फ्रिंज वेट ज़्यादा होगी, रेड वाले की, जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा, है ना। तो लैम देन बीटा आर इज ग्रेटर देन बीटा डी, रेड की फ्रिंज वेट ज़्यादा होगी वॉयलेट से, है ना। लिखना है कि आगे बढ़े, आगे। अगर हम वाइट लाइट यूज़ करते हैं, तो हमें यहाँ पे अगर हम वाइट लाइट यूज़ करें, थर्ड फिगर जो बना हुआ है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका होता है, वॉयलेट का, और सबसे कम होता है रेड का। तो रेड आपको एज में मिलेगी, वॉयलेट तो सेंटर पे चली जाएगी, है ना। हाँ, तो यहाँ पे रेड और वॉयलेट आप देख सकते हो, रेड का डेविएशन कम हुआ है, हाँ, सेंटर के पास आ जाएगी। ठीक है, इफ वाइट लाइट इज यूज्ड, इफ वाइट लाइट इज यूज्ड, सेंट्रल बैंड विल बी वाइट with red edges, central band will be white with red edges, central band will be white with red edges, central band will be white with red edges। बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं फिर हम लोग इसके आगे का, इसके आगे कुछ पॉइंट्स बचे हैं वो करेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद डिफ्रैक्शन और फिर पोलराइजेशन। तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग ख़त्म ही कर देंगे एक तरीके से, अगर हो पाया तो क्वेश्चन के साथ।